Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. सो देर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, जो हम पालतू जानवर, जो हमारे डॉग्स या कैट्स या फिर दूसरे पेट्स हैं वो। तो सो देर इज अ वाइड रेंज। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. So इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, but still they are present around us. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, or organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity, or the number and types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. So basically एक एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एक ही टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स या होते हैं या स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसको कंबाइंडली जब वो इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है तो इट क्रिएट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर हम एक सिंपल लेमन टर्म्स में देखें तो देर आर डिफरेंट स्पीशीज विच आर लिविंग टुगेदर, इट क्रिएट्स बायोडाइवर्सिटी। और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज विच आर लिविंग टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिफाइड। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. So, लोकल एरिया में जो एनिमल्स, बर्ड्स या जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, सो वहां पे उनको लोकल नाम से जाना जाता है। बट अगर हम इंटर कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर साइंटिफिक कम्युनिटी अगर किसी प्लांट, एनिमल या किसी ऑर्गेनिजम्स को रेफर करती है तो हियर वी विल रिक्वायर्ड अ कॉमन नेम, सो इट वुड बी इजीली for a scientific community to gain knowledge about that particular species of plant or animal. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. That's a किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन नाम देने की जरूरत पड़ी, जिससे कि सभी जगह पे उसको उस स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके बीच में उस कॉमन नेम से उसको रेफर किया जाए। सो इससे इट वुड बी इजी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। सो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. सो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को करेक्टली उसको डिस्क्राइब कर पाए और उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सो दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड डी आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate this study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organisms. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. सो जो प्लांट्स हैं उनके नाम देने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं और उनके बेसिस पे उनके जो नाम है दे आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। You may ask, how are animals named? So animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature. सेम इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनके नाम देने के लिए जो टैक्सोनॉमिस्ट है they have created International Code of Zoological Nomenclature.
The scientific names ensure that each organism has only one name. So scientific name means किसी organisms को all over the world उस specific नाम से जाना जाएगा, that would be called scientific name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. So नॉमेनक्लेचर में एक और चीज इंश्योर की जाएगी कि साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में उस स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक नेम यूज किया जा रहा है उसी को प्रमोट किया जाए. अदर नेम्स यूज करेंगे तो इट वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन. बायोलॉजिस्ट follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. So जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए, जिसमें एक जो प्रिंसिपल है लाइक कि ईच नेम वुड हैव टू कंपोनेंट्स. हर नाम में दो कंपोनेंट होंगे. जो पहला जो नाम जो होगा कंपोनेंट वो है जेनेरिक नेम और दूसरा जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. So इस सिस्टम को हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट्स फिक्स किए गए हैं. जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो स्पेसिफिक या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो मेथड है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया और आज इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it's a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species. So अगर हम मैंगो एग्जाम्पल लें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका. तो इसमें जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो इंडिका है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. कुछ और भी यूनिवर्सल रूल्स भी हैं इस नॉमेनक्लेचर के, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. सो जनरली जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में है और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. सो मेनली दे आर लैटिनाइज्ड, चाहे उनका ओरिजिन किसी नॉन लैटिन कंट्री में भी हो. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. सो जो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इसमें जो दो कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. इन बायोलॉजिकल नेम को जब हम लिखेंगे तो उस अगर उनको हाथ से लिखेंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और अगर उन्हें प्रिंट किया जा रहा है तो उन्हें इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा टू रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन. The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. जो genus जो word है वो capital letter से start होगा और जो species वाला जो word है वो small letter से start होगा. जैसे मैंजीफेरा जो इंडिका जो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे भी जो जीनस जो वर्ड है मैंजीफेरा उसमें एम जो है वो कैपिटल है और जो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिका वहां पे स्मॉल लेटर यूज किया गया है. नाउ नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन abbreviated form Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. So जब साइंटिफिक नेम है उसके एंड में जो है उस साइंटिस्ट का नाम भी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा. ये इंडिकेट करता है कि सबसे पहले इस साइंटिफिक नेम को इस साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया. जैसे मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे लास्ट में हमने लिन लिखा है. सो इट शोज दैट कि जो मैंजीफेरा इंडिका नाम है इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस.